Assalamu alaikum students, I am Usman from Conceptual Chemistry Zone and today we will study the electron affinity. The first part of this video will be in English and the second part will be in Urdu and Hindi. First of all, what is electron affinity? To learn any topic, one should have the knowledge of the definition of that topic, which is very important. So by definition, the electron affinity is the energy released or absorbed when an electron is added to a gaseous atom to form a negative ion. Now here are two cases, either the energy will be released or absorbed and the end product will be a negative ion for example, when an electron is added in the neutral fluorine atom, the fluoride ion or F negative ion will produced and 337 kilojoule per mole energy will be released. The electron affinity will always be expressed in the units kilojoule per mole. When we add first electron in the neutral atom, there will be the release in energy and the sign will be the negative sign as shown in the example of the oxygen. When we add first electron in the neutral atom of oxygen, there will be the release of 141 kilojoule per mole energy. But when we add the second electron in the oxygen atom, then there will be the absorbance of the 780 kilojoule per mole energy. So we can say that when we add first electron in the neutral atom, there will be a release in energy and the energy will be expressed by positive sign, negative sign, and when we add the second electron in the uninegative ion, then the absorbance of energy will be expressed by positive values, which is 780 kilojoule per mole in the case of oxygen. Next is the periodicity of the electron affinity. The electron affinity depends upon the size of an atom, vacancies in the outermost shell, and the nuclear charge. The size of an atom is inversely proportional to the value of electron affinity. Smaller the size of the atom, larger the value of electron affinity, and larger the size of atom, smaller the value of electron affinity. Although the electron affinity shows the same trends as the ionization energy, when we move top to bottom in a group, the electron affinity decreases down the group, and when we move left to right in a period, the electron affinity increases along the period. जी स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उस टॉपिक की डेफिनेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द एनर्जी रिलीज और अब्जॉर्ब्ड। इसमें दो सूरतें हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो रिलीज़ भी हो सकती है और अब्जॉर्ब भी हो सकती है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू द गैसियस एटम, जबकि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक गैसियस एटम में दाखिल किया जाता है। इस तरह ये कंडीशन लगा दी गई है कि जब भी हमने किसी भी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन दाखिल करना होगा तो एटम की जो स्टेट है वो गैसियस स्टेट होनी चाहिए। एटम की फिजिकल स्टेट जो है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए जब भी हम उसमें कोई इलेक्ट्रॉन को दाखिल करना चाहें टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। जैसे कि हमको पता है कि हम किसी भी एटम में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन दाखिल करते हैं तो वो एटम जो है वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एनर्जी की वो मिकदार है जो या तो खारिज होती है या जज़ब होती है जब किसी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन को दाखिल किया जा सके। लेकिन कंडीशन ये है कि जिस न्यूट्रल एटम में आपने इलेक्ट्रॉन को दाखिल करना है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और जब आप उस न्यूट्रल एटम में कोई इलेक्ट्रॉन दाखिल करेंगे तो वो एक नेगेटिव आयन बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फ्लोरीन की एग्जाम्पल दी हुई है। फ्लोरीन के न्यूट्रल एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन दाखिल किया जाता है तो वो फ्लोराइड आयन बन जाता है, और इस प्रोसेस में 337 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो खारिज होती है, और माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी जो है वो खारिज हो रही है। जब भी एनर्जी रिलीज़ होगी या खारिज होगी तो एनर्जी के साथ साइन हमेशा नेगेटिव का आएगा।
लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें हम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में हम जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो नेगेटिव की फॉर्म में ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव आयन बन जाता है और 141 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। 141 के साथ नेगेटिव का साइन ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। लेकिन जब ओ नेगेटिव में हम एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, जो कि प्लस 780 किलो जॉल पर मोल है। यहाँ पे प्लस का या पॉजिटिव का साइन ये इंडिकेट करता है कि जब हम किसी भी यूनिनेगेटिव आयन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करते हैं तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होने की बजाय अब्जॉर्ब हो जाती है। यानी कि जब हम किसी भी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करते हैं तो उसके पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमेशा नेगेटिव साइन से इंडिकेट की जाती है और उसकी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव साइन से इंडिकेट की जाती है। अब इस पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करने की वजह ये है कि जब हम किसी यूनि नेगेटिव आयन में जो कि पहले ही नेगेटिव हो उसमें हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करते हैं तो जो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसमें और उसमें एटम में मौजूद पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें रिपल्शन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होने की बजाय अब्जॉर्ब होती है। आगे आ जाता है जी पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम पहले ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिनमें पहले है साइज ऑफ द एटम, फिर न्यूक्लियर चार्ज और फिर वैकेंसीज इन द आउटर मोस्ट शेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइज ऑफ द एटम के साथ क्या रिलेशन है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो साइज़ ऑफ एटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती जाती है और जैसे जैसे साइज़ ऑफ द एटम जो है वो ज़्यादा होता जाता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती जाती है। तो इस बना पे हम कह सकते हैं कि जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती है और जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। ये ट्रेंड बिल्कुल सेम आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड की तरह है और अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अगर हम और डिटेल में बात करें तो अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड जो ट्रेंड है उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ग्रुप 2A, 5A और 8A के एलिमेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं, क्योंकि ग्रुप 2A में जो आउटरमोस्ट शेल होता है वो कंप्लीट होता है, 5A में जो आउटरमोस्ट शेल होता है वो पार्शली फिल्ड होता है और 8A में भी जो आउटरमोस्ट शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। और ये बात मैंने आपको अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वीडियो में भी बताई हुई थी। अगर आप इनकी स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी वाली वीडियो को भी दोबारा चेकआउट कर सकते हैं। ग्रुप 2A, 5A और 8A के ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। और दूसरा है जी हैलोजेंस। ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस कहते हैं, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन आ जाता है। तो जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप तो हम ये कह रहे होते हैं कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से ज़्यादा है, क्लोरीन की ब्रोमीन से ज़्यादा है और ब्रोमीन के आयोडीन से ज़्यादा है। लेकिन इस तरह नहीं होता। जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन से ज़्यादा है और फ्लोरीन की ब्रोमीन से ज़्यादा है और ब्रोमीन के आयोडीन से ज़्यादा है। यानी कि 7A ग्रुप जो है उसमें नॉर्मल ट्रेंड पाया जाता है। फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। जिसकी वजह से फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन से कम होती है। हालांकि जनरल ट्रेंड के मुताबिक फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रुप 6A के एलिमेंट्स हैं जिनको रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन। तो जब हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करती है तो हम ये सपोज कर रहे होते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो उसके ग्रुप मेंबर में से सबसे ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद सिलीनियम, फिर टेलोरियम और फिर ऑक्सीजन और फिर पोलोनियम। तो ये एक अबनॉर्मल बिहेवियर है जो कि ऑक्सीजन शो करता है और बजाय इसके कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा शो करता, सल्फ़र जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हाई वैल्यूज़ शो करता है, जो एक अबनॉर्मल ट्रेंड है। अगर ये वीडियो आपके लिए कहीं पे भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।